Hello, welcome back to your own channel Chemistry Simplified. We are back with another topic of organic chemistry today. And this particular video is for those students who are in class 9 to 12 specifically, because the topic that we are going to discuss is IUPAC nomenclature of organic compound, which is the base of organic chemistry. So let's begin. Now first, before that, we need to understand what is nomenclature. So basically, nomenclature of organic compound means naming of the organic compound. Naming of the organic compound. Now, how do we name the organic compound? There are certain rules and regulations which we need to follow. Okay, so we'll understand one by one what are these terms. Okay, so whenever we start writing the name for an organic compound, we have to follow certain rules. Like, first of all, we need to know what is a word root. What is a primary suffix? What is secondary suffix? We'll be discussing one by one. Okay, so first is a word root. Now, what is word root? If I want to define it, the word root represents, this word root, it represents the number of carbon atom in a chain. Okay, for example, I'll be discussing it. For example, if the number of carbon is only 1, C1, if there is only one carbon, the word root is meth. If the number of carbon is 2, it is eth. If number of carbon atom is 3, it is prop. If it is 4, it is but. If it is 5, it is pent. If it is 6, it is hex. If it is 7, it is hept. If it is 8, it is oct, and so on. So like this, we name the word root. What is word root? Word root here will represent the number of carbon atom in a particular chain. Okay. Then we have the next is primary suffix. Now, what is a primary suffix? Primary suffix represents the saturation. The saturation or unsaturation in a carbon compound. Okay, for example, I'll tell you the example. For suppose we have one carbon double bond. If there is a double bond, then one single double bond is denoted by ene. Okay, if there are, this is only one carbon double bond. If there is 2 carbon double bond, then it is diene. If it is having 3 carbon double bond, then it is triene. Likewise, if it is having a triple bond, then it is known as ine. Okay, if it has it is having 2 triple bond, then it will be diene. If it is having 3 carbon triple bond, it will be triene, and so on. Okay, the next is secondary suffix. Secondary suffix represents the functional group. It represents the functional group. For example, if we have OH as the functional group, it is alcohol family. Okay. If it is CHO, it is aldehyde. Alcohol, the primary secondary suffix is represented as ol. If it is aldehyde, it is al. If it is a ketone, it is on. If it is a carboxylic acid, it is oic acid, and so on. There are many more if we want to represent the whole family. If it is NH2, it is
amine. If it is CaONH2, it is amide, and so on and on. So what is word root? Word root represents the number of carbon atom in a chain. Like if अगर एक कार्बन है तो मिथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप, आठ है तो ऑक्ट, नाइन है तो नॉन एंड सो ऑन. ओके, इट डिपेंड्स. देन प्राइमरी सफिक्स हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि आपका जो कार्बन चेन है उसमें सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन. सैचुरेशन का मतलब है कि सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है. ओके, अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर या तो डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है. उसके अलावा वी हैव सेकेंडरी सफिक्स. व्हाट इज सेकेंडरी सफिक्स? सेकेंडरी सफिक्स आपका रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप को. ओके, देन नेक्स्ट इज द प्रीफिक्स. What prefix? What is prefix? So if I want to define prefix, prefix is a part of the name which appears before the word root. अगर हम किसी कंपाउंड को नेम करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? प्रेफिक्स. प्रीफिक्स जो पहले लगता है, जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा. ओके, दैट इज प्रीफिक्स. नाउ देयर आर सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्स, जो हमेशा प्रीफिक्स में यूज होता है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सारे क्या हमेशा एज अ प्रीफिक्स हम यूज करते हैं. ठीक है. देन सपोज हमारे कंपाउंड के अंदर अगर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसमें हम चेक करते हैं कि हमारे फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, कौन से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम है. अगर हमारे किसी भी कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसे हम सेकेंडरी सफिक्स मानते हैं, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप. और उसके अलावा जिसकी प्रायोरिटी कम होती है वो हमारा कब लगता है? वो हमारा एज अ प्रीफिक्स लगता है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की. इट इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी. अगर हम आपको प्रायोरिटी चार्ट बताते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी चार्ट के अंदर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. Okay, if you want to note down, you can note down also. If you want to take the screenshot, you can take the screenshot also. Okay, so one second, I'll just give you the whole table. But before that, I would like to give you some question for practice. So सबसे पहले हम कुछ practice question करते हैं इससे पहले कि हम priority list पे आए. समझने से पहले हमें बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा बेसिक पर भी काम कर लें. Okay, so we have certain question. For example, like I hope this everybody knows, right? Then another question is ये हमारे पास दो सिंपल से क्वेश्चन है. ठीक है, जिसका हम कोशिश करते हैं सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. ट्राई कीजिए. If you know, you can try. If you don't know, I'll give you 1 minute and then we'll discuss. Okay, so if you want to number it, अभी यहाँ पे सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, इसके बाद बताऊंगी किस तरीके से रूल फॉलो करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बताया, वर्ड रूट क्या होता है. इस केस में हमारा वर्ड रूट क्या होगा, इससे भी बेसिक है. वर्ड रूट समझने के लिए
Okay, so here you can see with what will be the word root, और हम किसको अपना word root मानेंगे, क्या क्या possibilities है हमारे पास. Okay, so let's see 1 2 3 4 5. If we consider this straight line, ठीक है, तो हमारे पास word root क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5. If you have 5 carbon then word root will be pent. But ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा that the word root सबसे पहले हम किसे मेन चेन पेरेंट चेन कंसिडर करते हैं, उसे जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या है 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, this will be my longest chain. And then 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो आप किसी को भी यहाँ पे ये आपका मेन पेरेंट चेन हो गया. नंबर ऑफ वर्ड रूट विल बी 7. सो अगर 7 है देन इट विल बी हेड 10 एंड दिस विल बी इन योर सब्स्टिट्यूएंट. तो उसकी पोजीशन क्या है कि कौन से कार्बन पे 1 2 3 4. ओके, सो इट विल बी 4 मिथाइल हेप्टेन बेसिक. ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं तो एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है. ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड दैट व्हेनेवर वी हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड और aldehyde, they are always we start our counting from the terminal carbon. जब भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एल्डिहाइड होता है तो हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, उसी कार्बन से स्टार्ट होती है. सो we'll start our counting from, and this will be our main function group 1 2 3 4 and 5. So सबसे पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं, वर्ड रूट में हमारा क्या हो गया 5 कार्बन. सो वर्ड रूट इज पेंट. ओके, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, इसीलिए क्या हो जाएगा एन. ओके, सेकेंडरी सफिक्स क्योंकि हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है इसलिए क्या होगा ओइक एसिड and that too on the first carbon. Okay, and we have also a substituent और उसकी पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन है. ओके, सो टोटल नेम विल बी 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड. ओके, सो दैट्स वेरी इजी. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप है इसलिए हमने इसको नेम किया इस तरीके से. बट इन केस मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप ना होके 2 फंक्शन ग्रुप होते, जस्ट इम्पॉर्टेंट. सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे CH3 के जगह पे OH होता. ठीक है, so in case we have 2 or more than 2 functional groups in a particular compound, in that case we need a priority group. Okay, priority chart, so that in order to name the compound we should know which has got the highest priority. अब इन दोनों के केस में हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रायोरिटी होती है वो अल्कोहल ग्रुप से ज़्यादा होती है, इसीलिए मेरा मेन फंक्शन ग्रुप यहाँ पे क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा. ठीक है, एंड दिस अल्कोहल जब एक हमारा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो हमारा मेन फंक्शन ग्रुप हो गया और जिसकी प्रायोरिटी कम है वो हमारा प्राइमरी सफिक्स बन जाएगा. सो हियर अल्कोहल विल बी ट्रीटेड एज अ प्राइमरी सफिक्स. और इस समय इसका नेम कैसे करते हैं, इसके नेमिंग के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सी. सो द नेम विल बिकम 3 hydroxy pentanoic acid. Alright, likewise यहाँ भी हमारे पास एल्डिहाइड है तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे 1 2 3 and 4. अब यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी है
और इसके पास हमारे प्राइमरी सफिक्स क्या है, डबल बॉन्ड भी है तो इन हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू सी एवरीथिंग, हम यहाँ से इसकी नेमिंग करेंगे टू जिस and there are certain rules also, अभी I'll be discussing that also. CHO, अब बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, aldehyde, मेन वर्ड रूट क्या हो गया, 4 कार्बन, so it will be ब्यूट, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, डबल है इसलिए इन भी आएगा, डबल बॉन्ड है इसलिए इन आएगा। सब्स्टिट्यूएंट क्या है मेरे पास, थर्ड पोजीशन पे है मेरे पास, थर्ड 3 क्लोरो, ओके। ब्यूटेनॉल इज इन द फर्स्ट पोजीशन। नाउ इफ आई वांट टू नेम इट, हमें क्या क्या ध्यान देना है, हमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी बतानी है, हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी है। सो व्हाट विल बी द नेम, 3 क्लोरो ब्यूट, किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है, इट्स अ इन, and first position we have a aldehyde, so E. Now if we don't need to position the first position को अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाता है। so the name is 3 chloro bu 2 in 1 out, okay। I hope this is clear. Now talking about the priority chart, if you want to talk about the priority chart, सबसे ऊपर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ओके। उसके बाद हमारे पास है एसिडिक अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड्स, देन वी हैव ईस्टर। सो दिस इज द प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिल रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, ओके। उसके बाद क्या ग्रुप आएगा, एसिड अनहाइड्राइड, उसके बाद क्या आएगा, ईस्टर, इसके बाद क्या आएगा, एसिड क्लोराइड। ये आप चार्ट याद कर ले तो बेहतर होगा, ओके। देन वी हैव अमाइड्स, नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड, देन एल्डिहाइड, कीटोन, एंड देन वी हैव अल्कोहल, अमीन्स, अल्कीन, अल्काइन। अल्कीन की प्रायोरिटी भी अल्काइन से ज्यादा होती है, एंड देन वी हैव हैलो, नाइट्रो, एंड लास्टली वी हैव अल्काइल ग्रुप। सो आई विल प्रोवाइड ऑल दिस नोट्स टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, ओके। तो मैं बस आपको बता रही हूँ कि ये आपकी प्रायोरिटी चार्ट होती है। ये प्रायोरिटी चार्ट आपको कब काम आएगा, जब आपके किसी भी कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होंगे। नाउ कमिंग टू आवर राइटिंग द नेम, ओके। सो वी हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशन, ओके। सो लेट्स बिगिन। The first is the longest possible chain, which I have just told now. The longest possible chain. सबसे पहले हमें देखना क्या है कि हमारा जो चेन कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, मेन चेन हमारी कौन सी होगी। ये भी हो सकती है, अब आप देखो 1 2 3 4 6 7 8, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज, अब हमारा मेन फंक्शन ग्रुप क्या होगा, अब हम किसको मेन चेन मानेंगे, 1 2 3 4 5, इसको मेन चेन मानोगे, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। विच वन विल बी आवर मेन चेन, मेन चेन वही होगा जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, तो ये हमारा मेन कार्बन चेन बनेगा, ओके। अब सबसे पहले आपने ये कार्बन चेन देख लिया, उसके बाद आपको क्या देखना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ योर द सब्स्टिट्यूएंट। अब आपकी अगर आपके इस कार्बन के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, देन वी हैव टू मेक श्योर दैट योर सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ओके। सो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। नंबर फ्रॉम द साइड दैट गिव्स द लोएस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज, ओके। और अगर आपके कार्बन के अंदर मान लीजिए सपोज
1, 2, 3, 4 and 5. Okay, you have one OH group here, you have one OH group here. ठीक है, अब आपके पास ये 5 है तो हम किधर से भी नेमिंग करेंगे, इक्वली आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो अगर आप इधर से भी करोगे तो ये सेकंड पोजीशन ये फोर्थ पोजीशन पे आएगा, अगर आप इधर से भी करोगे तो सेकंड और फोर्थ ही आएगा. ठीक है, बट यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि जब आपके पास सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं देन इन दैट केस वी यूज द टर्म लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये है तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, सेकेंड पोजीशन पे एक ये है, द वर्ड रूट विल बी पेंट and we have two substituent, two OH group present on this second carbon and the fourth carbon. So the name will be pentane and you have to give the dash also before naming. Second will give the position of the OH group. तो पेंटेन है, वर्ड रूट हमारा सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे दो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है एंड क्योंकि सेम है इसीलिए हम क्या लिखेंगे, डाई, और अल्कोहल है इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, ओल. सो पेंटेन 2,4 डाई ओल. ठीक है, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है. ठीक है, अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट अलग हो, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे मेरे पास OH है, यहाँ पे मेरे पास मिथाइल ग्रुप है. ठीक है, ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम हमारे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे और नेमिंग हम किधर से करेंगे, जिधर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. सो इट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5. मान लीजिए मेरे पास सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन भी है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरा सेकेंडरी सफिक्स हो गया अल्कोहल ग्रुप, ये मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये मेरे पास दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया. तो अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग मौजूद हैं, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर करते हैं. ठीक है, सो नेमिंग तो इधर से ही होगी, बट क्लोरो एंड मिथाइल, तो C will come first before N, so the name will be 2 chloro 3 methyl. वर्ड रूट क्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेनॉल. Why I'm not giving क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे इसलिए मैंने उसका पोजीशन नहीं बताया. ठीक है, दिस इज द रूल. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज द लोकेंट रूल. लोएस्ट रूल फॉर द सम. आई विल गिव यू अ एग्जांपल फॉर दिस लोकेंट रूल. अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, लेट मी रब इट. Suppose I have a question, this ओके. नाउ ऐसे केसेस में हम किसको नेम कैसे करेंगे, अब बताओ किधर से नेम करते हैं. चलो दोनों तरफ से करके देखते हैं. लोकेस्ट सम रूल फॉलो करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, इधर से नेम किया और अब इधर से नेम करते हैं, इस साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. ठीक है, when we are doing from, ये मेरा लेफ्ट राइट है, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है और सिक्स पोजीशन पे. सेकेंड प्लस थर्ड प्लस सिक्स पोजीशन, टोटल इज 9 + 2 11. अब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं. पहला मेरा सेकेंड पोजीशन पे है, फिर मेरा फिफ्थ पोजीशन पे, फिर मेरा सिक्स पोजीशन. ठीक है, 5 + 6 11, 11 + 2 इज 30. ओके, सो हमें क्या फॉलो करना है, लोएस्ट सम रूल. तो आप बताइए लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा फॉलो करना चाहिए, किधर से नंबरिंग करनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट करनी चाहिए या राइट टू लेफ्ट करनी चाहिए. डेफिनेटली विल डू गो फॉर
this. So in this case the name will be what? हमारा सेकेंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे और सिक्स पोजीशन पे सेम ही मिथाइल ग्रुप है. सो फर्स्ट वी नंबर इट 2, 3, 6. ठीक है. पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि 3 है इसीलिए ट्राई. कितने मिथाइल हैं? मिथाइल, ट्राई मिथाइल. एंड हाउ मेनी कार्बन? वर्ड रूट इज 7, so it will be heptane. This will be correct. 2, 3, 6 trimethyl heptane and not 2, 5, 6 trimethyl heptane. ठीक है? Got it. So I think this step is also clear. Okay. Local sums I have told you. Then let's practice some question. I have some questions and also some homework for you. We will practice 2-3 questions and 2-3 homework. First, let us write some question. Then we'll answer one by one. ठीक है. 4 question we have. Let's answer. Now in the first question, अब आप क्या देख रहे हैं? आपके पास कितने फंक्शनल ग्रुप हैं यहाँ पे? ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक फंक्शनल. इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? कार्बोक्सिल की. नेमिंग किधर से करेंगे? 1, 2, 3. ठीक है. वर्ड रूट क्या हो गया? 3. अब ये मेरा क्या हो गया? प्रेफिक्स. सो नेम विल बी 3 hydroxy. 1, 2, 3. Word root will be prop. Position will be, ये क्या हो गया? ओइक एसिड. सो प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है. क्लियर है. सेकेंड इज वी हैव अ डबल बॉन्ड एंड वी हैव अ OH ग्रुप. प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा है. कैसे करेंगे? इधर से नेमिंग करेंगे. ठीक है. Word root क्या हो गया? Again 3. So name will be 1, 2 and 3. So we have to give the position of the double bond also. So name will be propane, prop2ene, and first position we have alcohol. So 1 ol. Okay. Prop2ene and 1 ol. Then this one again carboxylic acid. 1, 2, 3, 4. Word root will be 4 कार्बन में तो word root क्या होगा? 4 होगा. कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है. इन आपके सेकेंड पोजीशन पे. ठीक है. सो इट विल बी ब्यूट 2 इन, और वी कैन राइट इन वानोइक एसिड और इनोइक एसिड. ऐसे भी लिख सकते, दोनों तरीके से लिख सकते हैं. अब आप इसकी कोशिश करो. यहाँ पे मेरे पास एल्डिहाइड भी है और मेरे पास अल्कोहल भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है. तो कैसे हम नेम करेंगे? अगेन एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है. 1, 2, 3 and 4. So it will be 2 methyl 3 hydroxy. 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटेनॉल. Okay. So this is how we name or organic compound. अब आप क्या कर सकते हैं? आप कोशिश कर सकते हैं. ठीक है. I hope you have understood this nomenclature, and I'll give you some practice. Only 2 practice question for yourself, so you can write the practice question. Practice by yourself. Practice yourself and find out if you have understood. If not, you can come back, you can come in for your doubts, no issue.
I'm giving only 2 questions. Okay, so you practice this by yourself. All right. Now, I hope this video was beneficial for you. If you like my video, do like, subscribe and comment. Also share with your friends. They will be very, very thankful to you. Okay guys, see you tomorrow. Goodbye.